great joy and privilege once again for me to be sharing God's word with you all. एक और मेरे लिए बहुत खुशी और आदर की बात है कि प्रभु का वचन मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। One of the things that often bother me as a Christian is God has promised so much of power in my life, and yet why am I so not powerful? एक बात मुझे बहुत परेशान करती है कि प्रभु ने इतनी सामर्थ्य की प्रतिज्ञा बांधी है कि मेरे जीवन को इतना सामर्थ्य बनाएगा, तो फिर मैं इतना कम सामर्थ्य मेरे जीवन में क्यों है? The Lord Jesus Christ made the invisible God visible to us, and we as Christians have to make the invisible Christ visible to the world. और प्रभु ने उस अनदेखे परमेश्वर को हमें दिखा दिया ताकि हम उस अनदेखे यीशु को इस संसार को दिखा सके। You know, we fight the devil from a point of victory, not for victory. हम शैतान से विजय की भूमि पर खड़े होकर लड़ते हैं, विजय के लिए नहीं लड़ते। From a point of victory, not for victory. हम विजय के लिए नहीं लड़ते, पर विजयी होकर अब लड़ रहे हैं। Because the Lord has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. क्योंकि प्रभु ने हर एक आत्मिक आशीष यीशु मसीह में हमें दी है। But do we really expect this type of anointing in our lives? लेकिन क्या हम इस तरह का अभिषेक अपने जीवन में इसकी आशा करते हैं? Spiritual power. आत्मिक सामर्थ। In Ephesians we read, now unto him who is able to do. अब इसी में पढ़ते हैं कि अब जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, exceeding abundant more than we can even ask or think. हमारे मांगने सोचने से बढ़कर करने में सामर्थ्य है। According to the power that works in us. उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। So this morning I want to speak about spiritual power. आज सुबह मैं आपके साथ आत्मिक सामर्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। Please don't misunderstand me. आप मुझे गलत ना समझे। That I have achieved it all and I've got tremendous spiritual power. That's why I'm telling you. कि मैंने पा लिया है, मेरे जीवन में बहुत आत्मिक सामर्थ्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है। I'm also as a fellow Christian and a pilgrim struggling like you. मैं भी आपके साथ संगी विश्वासी होने के नाते उसी तरह के युद्ध और यत्न के साथ चल रहा हूँ। Let's read Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. आइए पढ़ें इफिसियों 3 अध्याय 14 से 21। इफिसियों 3 अध्याय 14 से 21। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि इसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। Paul says, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, and to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. He starts saying, for this reason. वो कहता है इस कारण से। So what is the reason? वो कारण क्या है? And here Paul is so focused on the sanctification of the believers. और यहाँ पर पौलुस विश्वासियों की पवित्रता के बारे में इतना ध्यान रख रहा है। Sanctification of believers. कि विश्वासी एक पवित्र जीवन बिता सके। This is such a glorious portion and so instructive. ये हिस्सा इतना ज्यादा महिमित और इतना ज्यादा शिक्षा से भरा हुआ है। I often sit and wonder, how can this be true? मैं कई बार सोचता हूँ ये कैसे हो सकता है? How is it possible that God is able to do immeasurably
more than I can ask or think. मैं सोचता हूँ कि कैसे हो सकता है कि मेरे मांगने सोचने से बढ़कर प्रभु कर सकता है। Beyond all what we can ask or think. जो कुछ मैं मांग और सोच सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा करने में सामर्थ्य है। Abundantly beyond more than I can ask or think. जो मैं मांग सकता हूँ उससे कहीं कहीं ज्यादा देने के लिए सामर्थ्य है। And far more abundantly than I can ask or think. और इतना बहुतायत से दे सकता है जो मेरे मांगने सोचने से बहुत बहुतायत से बढ़कर। The message here is that there is immense spiritual power in us. अरे इसका संदेश ये है कि हमारे अंदर एक बहुत अद्भुत आत्मिक सामर्थ्य है, Individually and as a church. बहुत बड़ी आत्मिक सामर्थ्य है, व्यक्तिगत रूप से और मंडली के रूप में। Yet most of us as believers would not see that reality in our lives and lay claim to it. लेकिन ज्यादातर विश्वासी इस बात को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते और इसको बड़े हिसाब से नहीं कह सकते कि उनके पास ये सामर्थ्य है। I don't know if there's anyone here who can really say, God, this is my experience. कोई हमारे बीच में जो सच में कह सकता है कि हाँ प्रभु इस सामर्थ्य का मैंने अनुभव किया है। It seems far beyond us. ऐसा लगता है कि हमसे बहुत दूर की बात है। It's too grand, too much. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। How can I have such a life? ऐसा जीवन मेरा कैसे हो सकता है? You know, I can say a lot of things. बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, I can ask a lot of things. बहुत सारी बातें पूछ सकता हूँ, But imagine, think a lot of things. बहुत सारी बातें सोच सकता हूँ। And God is saying, beyond all you can ask or think, I will provide. और प्रभु कहता है कि तेरे मांगने सोचने से बढ़कर मैं तुझे दूंगा। And in this new year, I want to encourage you, brothers and sisters, that it is possible. और इस नए साल में मेरे भाई बहनों मैं आपको ये हिम्मत देना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। This is God's word. This is not my word or Brother Chani's word. ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा या चानी का वचन नहीं है। But sometimes we look at it from an earthly sense, isn't it? लेकिन कई बार हम सिर्फ ऐसे पृथ्वी की तरह इंसानी रूप से नीचे की तरह सोचते हैं। But this is all in a spiritual sense. लेकिन ये तो सब आत्मिक रीति से है। The real story of your life and my life is kept in heaven. जो सच्ची कहानी है मेरे और आपके जीवन की वो स्वर्ग में रखी है। Until then, we are never going to know what the Lord is actually doing in us. और तब तक हम नहीं जान पाएंगे प्रभु हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है। We do not know when we get to heaven what God is going to reveal to us as to our life on this earth. हम नहीं जानते जब स्वर्ग पहुंचेंगे क्या कुछ प्रभु हमारे जीवन के बारे में बताएगा जो हम यहाँ पर इस पृथ्वी पे नहीं जानते। We must always look at the reality of our impact of our life eternally. हम इस बात को इस सच्चाई के साथ जिए कि मेरे जीवन का अनंत काल पे क्या प्रभाव पड़ता है। The impact is laid up in heaven, and someday we will find out the truth about that. और ये इसका प्रभाव स्वर्ग में रखा गया है, एक दिन हम इस सच्चाई को जानेंगे। And in this beautiful text, there are 5 steps. और इस बड़े सुंदर अध्याय में इस सुंदर हिस्से में 5 बातें। So there are 5 powerful steps that Paul is putting here, so that at the end we can say that the church will bring glory to Christ. 5 बातें पौलुस यहाँ पर लिख रहा है जिसके अंत में हम प्रभु को महिमा देने वाले बने। You know, we all know that in Acts 1:8 it says, Jesus said, you shall receive power, after that the Holy Spirit falls on you. प्रथम काम 1:8 में लिखा है कि तुम इसके बाद सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। At the same time, the Holy Spirit is not visible. अब उसके साथ साथ पवित्र आत्मा दिखता नहीं, अनदेखा है। How powered we are, how spirit powered we are, how divinely energized we are. हम कितने आत्मिक रूप से सामर्थ्य हैं, कितने रूप से स्वर्ग ने हमारे अंदर एक बड़ी ताकत डाली है। John is writing and he is saying that it does not appear what we shall be, but when he appears, we will know how we are. यूहन्ना लिखता है कि हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। This is not manifested in the world. ये संसार में नहीं दिखता। But you know, brothers and sisters, let me assure you this morning, assure you and assure me, लेकिन प्रिय भाई बहनों मैं आपको और अपने आप को आज ये आश्वासन देना चाहता हूँ, on the authority of the word of God, वचन के अधिकार पे, that the triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit dwells in you. कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। And we have immense power to actually affect people's life for eternity.
और हमारे अंदर एक बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन को अनंत काल तक प्रभावित कर सकती है। In verse 8, we have disposable, unfathomable riches of Christ Jesus. और वो कहता है 8वें आयत में, हमारे पास प्रभु की ऐसी धन है जो हम खोजा नहीं जा सकता। In Ephesians 1:3, we say that He has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. इफिसियों 1:3 में कहता है कि उसने मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से नवाजा है। And that is why Paul is saying, for this reason, इसलिए कहता है पौलुस, इस कारण से, that is your sanctification and my sanctification. मेरी और आपकी पवित्रता से, and there is a sequence that He is putting in front of us. और वो एक पूरी रीति कदम पर कदम कैसी है वो हमारे सामने रख रहा है। If you do the first sequence, you will reach the second sequence. If you do the second sequence, you will reach the third sequence, the third sequence to fourth, the third to the fourth, and then finally the internal power. अगर आप पहली बात को पूरा करेंगे तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और तब वो अंदरूनी सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगी। He says, I am bowing my knee. That is implying prayer. वो कहता है कि मैं अपने घुटने टेकता हूं, इसका मतलब वो प्रार्थना करता है। You and I are the only people in this world that can have an impact on eternal things. मैं और आप वो लोग हैं इस दुनिया में, केवल हम ही वो लोग हैं जो अनंत काल की चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। Nobody else, no president, no prime minister, no king, no queen. कोई भी, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, रानी, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी, कोई इस बात को प्रभावित नहीं कर सकता। And Matthew is telling us in chapter 16, he is saying, I will give you the keys of heaven and hell. और मत्ती 16 तो कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग और नरक की कुंजी दूंगा। Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. जो कुछ तू पृथ्वी बांधेगा स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू पृथ्वी खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। So we are Holy Spirit powered. हम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दिए गए हैं। And Paul is saying, I am praying for you, efficient believers. और वो कहता है शिव विश्वासी से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। You know, we know a lot of doctrine. हम बहुत सारी शिक्षाओं को जानते हैं। We talk about God's sovereignty. हम प्रभु की त्रिएकता की वो सर्वशक्तिमान, इसके बारे में बात करते हैं। We know that we are justified. हम जानते हैं कि उसने हमें धर्मी ठहराया। We know one day we are going to be glorified. हम जानते हैं कि एक दिन हम महिमित ठहराए जाएंगे। But the middle part, sanctification, we sometimes forget. लेकिन बीच का जो हिस्सा है, पवित्र किए जाना, अलग किया जाना, उसको भूल जाते हैं। Sanctification is where we live and move and have our being. Sanctification वो चीज है कि जहाँ हम रहते हैं और अपना काम करते हैं, जहाँ पर हम हैं। And it is between being justified and being glorified. और ये है धर्मी ठहराए जाना और महिमित ठहराए जाने के बीच की बात। He's saying, I bow my knees. That means I am falling prostrate with deep emotion, passion. और यहाँ जब वो कहता है कि मैं अपने घुटने टेकता हूँ, मतलब कहता है कि मैं बहुत ही यत्न के साथ, बहुत जुनून के साथ गिर कर प्रार्थना करता हूँ। It's like he's saying in Galatians, with birth pangs until Christ is fully formed in you. जिस तरह गलतियों में कहता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ जब तक मसीह तुम में ना बन जाए। And he's saying in verse 16, according to the riches of his glory. और 16वीं आयत में कहता है उसके धन के महिमा के अनुसार, उसके महिमा के धन के अनुसार। The riches of Christ, the riches of glory, the riches of grace. जो उसके मसीह का धन, उसकी महिमा का धन, उसके अनुग्रह का धन। And he is explaining in this that if you do this, you will come to this, and then finally God is able to do and give you that internal power. और वो ये बात कहता है तुम ये करोगे, तुम यहाँ पहुंचोगे और फिर तुम्हें प्रभु वो अंदरूनी आत्मिक सामर्थ्य देगा। He wants the church to be powerful. वो चाहता है कि मंडली बहुत सामर्थ्य बने। He wants me to be powerful, you to be चाहता powerful. है कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से बहुत सामर्थ्य बने। And there are 5 aspects which are in progression. और 5 चीजें हैं जो एक के बाद एक आती हैं। The first thing is in verse 16. पहली बात 16वीं आयत में, Strengthened with power in the spirit in the inner man. हमारा भाई हिंदी में पढ़ देगा 16 पर, कि मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर
बलवंत होते जाओ, strengthened with power तुम भीतरी सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, in the spirit, आत्मा में, in the inner man, अंदरूनी मनुष्य के साथ, inner strength. अंदरूनी सामर्थ्य। So my first point is inner strength, तो मेरी पहली बात है अंदरूनी सामर्थ्य, and sanctification starts from here. और पवित्रता का काम यहाँ से शुरू होता है। It prays for inner strength. वो अंदरूनी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता है। Before I can do anything on the outside, इससे पहले कि मैं कुछ भी बाहरी रूप से कर पाऊं, it has to start from the inside. वो पहले मेरे अंदर से शुरू होना चाहिए। This is a progressive kind of sanctification. ये एक के एक कदम पे कदम बढ़ती हुई पवित्रता और अलगाव का जीवन है। Sanctification starts with the inner man being strengthened by the Spirit. सैंक्टिफिकेशन, ये पवित्रता लगाव शुरू होता है जब पवित्र आत्मा अंदर से हमें सामर्थ्य देता है। You have no hope of maximizing the power on the outside unless your life on the inside is strong. आप बाहर से कभी सामर्थ्य नहीं हो सकते अगर आपका अंदर का जीवन ताकतवर सामर्थ्य नहीं है। It is the inner strength that leads to everything. ये अंदरूनी ताकत है जो सब चीजों को करती है। If your inner man is weak अगर आपका अंदरूनी मनुष्य कमजोर है, with sin, पाप के कारण, with disappointment, with despair, निराशा के कारण, हताशा के कारण, no matter what you try to show on the outside, it is useless. जो कुछ भी आप बाहर से दिखाना चाहो सब व्यर्थ है। You can't hide from God. आप प्रभु से नहीं छुप सकते। What you are is what you are on the inside. जो आप वास्तव में हो वो है जो आप अंदर हो। In the dark when nobody is watching you, उस अंधेरे में जहां आपको कोई नहीं देख रहा, that is what you are. वो ही आप वास्तव में हो। Ask yourself this question as I am asking myself this question. आपने आपसे सवाल पूछो जो मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ। In your innermost being, आपके सबसे अंदरूनी हिस्से में, जीवन में, मनुष्य में, are you being controlled by the strong, continuous influence of the Holy Spirit? क्या लगातार पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य कंट्रोल आपके ऊपर, आपके जीवन पर है? We work so hard for the outer man. हम बाहरी मनुष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं, Then we make ourselves beautiful. अपने आप को सुंदर बनाते हैं। If we have white hair, we like to make it black. अगर हमारे सफेद बाल हैं तो उनको काले करते हैं। If we are dark, we like to be fair. अगर हमारा रंग गहरा है तो हम उसको और गोरा करना चाहते हैं। If we are fair, we like to be dark. अगर हम गोरे हैं तो थोड़े कम टैन होना चाहते हैं। So much of the outer man is there. हमारे अंदर बाहरी मनुष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं, But Paul's focus is inner man. लेकिन पौलुस का ध्यान तुम्हारे अंदर के मनुष्य पे है। Paul's inner man was very strong. पौलुस का अंदर का मनुष्य बहुत मजबूत था। And let me tell you, brothers and sisters, that is where the battle is going to be won. और भाइयों बहनों, कि आप जानो कि वहीं पर हमारा युद्ध जीता जाएगा। It is not easy, it is progressive. और ये आसान नहीं है, ये एक के बाद एक आता है। And we see Paul in Romans chapter 7, 8, 9, he's struggling, isn't it? और हम देखते हैं रोमियो 8, 9, 7, 8, 9 में कि पौलुस बहुत यत्न कर रहा है, बहुत मुश्किल से उस बात को कर रहा है। And he is discussing what it feels like to face the sin that is in you. वो कहता है कैसा एहसास होता है जब मैं अपने अंदर के पाप का सामना करता हूँ। But he does not leave us there. लेकिन वो वहीं पर हमें नहीं छोड़ता। In chapter 8, he's telling us, 8वीं आत्मा में कहता है, you are not in the flesh, तुम शरीर में नहीं है, but in the spirit. पर तू आत्मा में है। The Spirit of God dwells in you. पवित्र आत्मा तुझ में वास करता है। And all who are led by the Spirit of God are the sons and daughters of God. और जो भी परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वो उसकी संतान है। The key is to be filled with the Spirit. जो मेन बात है कि हम आत्मा से भरे हुए हो। The inner battle is going to be won by the Holy Spirit. अंदरूनी जो मेरे जीवन में लड़ाई है वो पवित्र आत्मा ही जीतेगा। Read Colossians chapter 3 and verse 16 and 17. अगर हम पढ़े कुलसियों 3 अध्याय 16 है, कुलसियों 3:16। कुलसियों 3:16 जी भाई। Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another with all wisdom,
singing psalms and hymns of spiritual songs with the thankfulness of your hearts to God. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. When your mind and your meditations are dominated by the word of God, जब आपका मनन प्रभु पवित्र आत्मा के विचारों से भरा होता है. let me repeat this. When your mind and your meditation is dominated by the word of God, जब आपका मन और आपका पूरा जो आपका सोच है वो परमेश्वर के वचन से भरी होती है, that is how the Spirit of God controls you. तब पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण करता है. This is not some magic. ये कोई जादू नहीं है. This is not seeing some light from heaven. ये कोई स्वर्ग से ऐसे नहीं कि आप कोई रोशनी को देख रहे हो. It is not mystical or it is not subjective. It is objective. ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही काल्पनिक सी बात है, लेकिन ये वास्तव में एक सच्चाई है. Your mind is filled with divine truth. आपका मन उस स्वर्गीय सच्चाई से भरा हुआ है. And when your mind is filled with divine truth, the Spirit is directing you into that truth. और जब आपका मन उस स्वर्गीय सच्चाई से भरा होगा तो पवित्र आत्मा आपके ध्यान को उसी तरफ ले जाएगा. We see, isn't it, that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, fruitfulness, gentleness, self-control. हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, शांति, मेल मिलाप, करुणा और बहुत जेंटलनेस, इस तरह का स्वभाव है. The Spirit is controlling the inner man. पवित्र आत्मा अंदर के मनुष्य पर कंट्रोल कर रहा है. And Paul is saying that your strengthening of the inner man starts here. और पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य को ताकतवर बनाना यही शुरू होता है. Your thoughts have to be completely dominated by divine truth, not the internet, not Google, not Wikipedia. आपका अंदरूनी मनुष्य प्रभु के वचन से पूरे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि इंटरनेट से, ना गूगल से, ना यूट्यूब से. You know, we are so interested in stupid and useless things. हम बेकार की बातों में इतना रुचि रखते हैं. The amount of time we spend watching the news. जितना समय हम खबरों को देखने में लगाते The हैं. amount of time we spend talking about corona. कितना समय हम कोरोना की बातचीत करने में लगाते हैं. God is saying, you know, you are anxious, dominate your thoughts with my word. पौलुस प्रभु कहता है कि अगर तू इतना बेचैन है तो अपने मन को प्रभु के वचन से कंट्रोल कर. Holy truth, holy desires, holy thoughts, holy aspirations, holy longings. सच्चे विचार, पवित्रता के विचार, पवित्रता की उद्देश्य, पवित्रता की लालसा हमारे जीवन में काम करे. Sanctification is making you on the inside so that everything on the outside is Christ-like. ये सैंक्टिफिकेशन का काम, पवित्रता का काम आपके अंदर से हो रहा है ताकि बाहर से आप मसीह की तरह दिखने लगे. So the first step is inner strength. तो पहला कदम है अंदरूनी सामर्थ्य. The second step is indwelling Christ. और दूसरा कदम है मसीह हमारे अंदर वास करे. Verse 17. 17वीं आयत. It says that Christ may dwell in your hearts through faith. कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे मन में वास करे. Now this is not talking about salvation. ये उद्धार की बात नहीं कर रहा, because you are already filled with the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो. This is about Christ settling down in your heart. ये तो मसीह आपके दिल में आकर वास कर रहा है. Dwelling means, you know, he has complete control over everything that is there in your heart. Dwelling का मतलब आके रहने का मतलब जो कुछ भी आपके मन में है उसका पूरा नियंत्रण है. He is not like a guest. वो कोई मेहमान नहीं है. He is the boss. वो ही बॉस है. He is comfortable in your house. वो आपके घर में बहुत आराम से है. That is called indwelling Christ. ये है मसीह के हमारे अंदर वास करता है. Now, if your inner man is strengthened by the Spirit, अगर आपका अंदरूनी मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा ताकत पाता है, then Christ can settle down in your heart. तो फिर मसीह आपके अंदर आराम से वास कर सकता है. Let me ask you a question, brothers and sisters. मैं एक सवाल भाई बहनों आपसे करता हूँ. Is the Lord Jesus Christ comfortable in your heart? क्या मसीह आपके दिल में बहुत आराम से रहता है? Can you say that Christ can settle down and live in my heart and not be disappointed?
क्या आप कह सकते हो कि मसीह मेरे दिल में आकर रह सकता है, पूरे आराम से रह सकता है, उसको निराशा नहीं मिलेगी? Christ knows everything about me on the inside, and he's comfortable. मसीह मेरे अंदर के जीवन के बारे में सब कुछ जानता है और वहां पर वो पूरे आराम से है। You know, in the Old Testament, Abraham had a visit from God and two angels. और पुराने नियम में इब्राहिम के पास प्रभु और दो स्वर्गदूत मिलने आए God was going to bless Abraham and give him a son. और प्रभु ने अब्राहम को आशीष देने के लिए उसे बेटा देना था। And he came into his home, he came into his tent, he ate food with them, and he talked. और वो वहां पर आया, उसके तंबू में आया और वहां पर खाना खाया, उसके साथ बातचीत की। The Lord was very comfortable and he felt at home in Abraham's home. और प्रभु पूरी तरह इब्राहिम के घर में आराम से था, बिल्कुल अपनापन था उसको। But Lot, on the other hand, lived in Sodom. लेकिन लूत दूसरी तरफ सदोम में रहता था And God had a message for Lot. और लूत के लिए प्रभु के पास संदेश था। But God did not go to Lot's house. लेकिन प्रभु लूत के घर नहीं गया, He did not go to Sodom. वो सदोम में नहीं गया। That's not a place where he was comfortable. वो एक जगह, ऐसी जगह नहीं थी जहां प्रभु बहुत आराम से था। Suppose Christ comes into my house today. अगर आज मसीह मेरे घर में आए, He goes to the library वो लाइब्रेरी में जाए and he picks up the books from the library. और वहां से जहां पर मैं किताबें रखता हूँ वहां से वो कोई किताब को उठाए, What will he find on the social media and the internet that I am watching? वो क्या देखता है? जब मैं इंटरनेट सोशल मीडिया पे होता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, वो क्या देखेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ? When he looks inside my brain, what is the information that is being stored? जब वो मेरे दिमाग के अंदर देखता है तो क्या चीजें पाता है कि मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है? So Christ will throw away a few books and put in the word of God. प्रभु उन बेकार किताबों को हटाकर वहां प्रभु के वचन को रखेगा। And then the dining room in your heart, फिर वो आपके घर की जो खाने की मेज है वहां पर आएगा, the center of all your desires and appetite. जो आपकी सारी जो भूख की, खाने तृप्ति की जो जगह है, What you long for, what you desire, riches and prestige and earthly commodities. कौन सी लालसा या लालच की अभिलाषाएं आपके अंदर है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, शौहरत भी मिल जाए। And he throws all that and he gives you the heavenly bread that satisfies your soul. वो सब निकाल कर आपको स्वर्गीय रोटी देता है जो आपको सच में संतुष्ट करती है। Then he comes to the living room, फिर वो आपके बैठक में आता है, the place of socialization and activity, जहाँ relationship with पर friends. आप दूसरों से आप लोगों को मिलते हो, आपके मेहमान, आपके दोस्त आपको वहां मिलने आते हैं। Does the Lord feel like a stranger there? क्या प्रभु वहां पर अपने आप को अजनबी पाता है? And then he finds a small room. फिर वो एक छोटा सा कमरा देखता है, It's called a closet. अलमारी है, A small closet, a small room. एक बहुत छोटा सा कमरा है, And there is a very foul smell coming from that room. वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है And he's telling you, open it. और कहता है इसे खोल। But I'm telling him, no, I've given you the front room, I've given you the living room, I've given you the dining room, I've given you the library. You leave this room to myself. लेकिन वो कहता है प्रभु मैंने आपको बैठक दे दी, अपने खाने की मेज दे दी, अपने जहाँ किताबें रखता था वो दे दी, इस कमरे को रहने दे। And in that small room is all my secret sins, उस छोटे से कमरे में मेरे सारे गुप्त पाप हैं, where all my bitterness, anger, jealousy, everything is stored. And मेरी सारी जलन, हसद, अहंकार, कड़वाहट, गंदगी सब वहां भरी पड़ी है। then I am angry with God. और मैं वहां प्रभु के साथ गुस्सा हूँ। God, I have given you everything. You leave this room. Let me have this room. प्रभु मैंने आपको सारे कमरे घर के दे दिए, ये कमरा मेरे लिए छोड़ दे, बस ये नहीं दे सकता। But the Lord is saying, no, I cannot dwell in your heart. I cannot settle down unless you give me this small room. लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे मन में तब तक नहीं रह सकता जब तक तू एक कमरा मुझे ना दे। The Lordship of Christ will have to extend to every part of your life. प्रभु की प्रभुता आपके जीवन के हर एक हिस्से पर आनी चाहिए, कंट्रोल आना चाहिए। When you are strengthened in the inner man, जब तू अंदरूनी मनुष्य में मजबूत होगा and the Spirit controls your life and you are Christ-centered, और पवित्र आत्मा तेरे जीवन की कंट्रोल करता है, तेरा जीवन मसीह पर केंद्रित है, then Christ will settle in your heart. तब मसीह आपके अंदर जीवन के अंदर आकर रहेगा। You have to die to yourself. हमें अपने आप के लिए मरना है। Let me remind you, you and I are the address of the living God. मैं और आप जीवित परमेश्वर के रहने का पता है।
So the path of sanctification starts with inner strength, पवित्रता का काम अंदरूनी सामर्थ्य से शुरू होता है, and then it goes to the indwelling Christ. और फिर वो जो मसीह अंदर वास करता है वहां पर जाता है. The third is incomprehensible love. और तीसरी चीज है ऐसा प्यार जिसको हम अनुमान नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह अनुमान नहीं कर सकते. Verse 17, that you being rooted and grounded in love. 17वीं आयत में कि तुम उसके प्यार में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ. You know, I was thinking to myself, why did not the Lord Paul say rooted and grounded in truth? पौलुस ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम सच्चाई में जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ? Because the goal of all truth and all instruction is love. क्योंकि सारी सच्चाई और सारी शिक्षा का अंत जो उद्देश्य है वो प्यार है. And what the Lord wants to accomplish in sanctification is that you will love God and you will love your neighbor. और प्रभु जो पवित्रता हमारे अंदर चाहता है वो आप प्रभु से प्यार करोगे और अपने पड़ोसी से प्यार करोगे. Rooted and grounded, that means it's not something in the periphery. और ये है जड़ पकड़ कर बढ़ते जाना, यानी ये कोई ऐसे छोटे कोने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिरे की बात नहीं है. It's the root system of your life, and that ये is तो love. आपके जीवन की बिल्कुल जड़ है. If your life is a building, then love is your foundation. अगर आपका जीवन एक इमारत है तो उसकी नींव प्यार है. If you see your life as a tree, then love is the root system. अगर आपका जीवन एक पेड़ है तो उसकी जड़, उसकी जो जड़ें हैं वो आपका प्यार है. What controls you is love. जो आपको नियंत्रित करता है वो प्यार है. Everything that you do will be controlled by love. जो कुछ भी आप करोगे प्यार ही उसे नियंत्रित करेगा. Love will flow through you. और प्रेम आपके अंदर से बह निकलेगा. That is why the Lord Jesus Christ says, by this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another. लेकिन प्रभु, इसीलिए तो प्रभु कहता है कि इसी से सब लोग जाने कि तुम मेरे चेले जो तुम एक दूसरे से प्यार करो. Paul says that the love of God is poured into our hearts through the Holy Spirit so that love can be poured to others. पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा वो प्यार हमारे दिल में उड़ेला गया है ताकि वो औरों तक भी पहुंचे. It is so important for our lives to be governed by love. बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन प्यार के द्वारा नियंत्रित हो. And in verse 18, he's saying, you may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. और वो कहता है कि ताकि तुम सब संतों के साथ इस बात को जानो कि मसीह के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है. And Paul is saying, if your life is rooted and grounded in love, then you will be able to comprehend the fullness of that love of Christ. पौलुस उसे कह रहा है कि अगर तेरा जीवन मसीह के प्यार के जड़, मसीह की प्यार तेरे जीवन की जड़ है, तब ऐसा होगा. If you don't have that love, then like 1 Corinthians 13, you are just like a noisy gong and a clanging cymbal. अगर वो प्यार तेरे जीवन में नहीं है तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अनुसार तू बस एक झनझनाती हुई झांझ और एक बाजा ही है, बस और कुछ नहीं है. Dominant love. प्यार जो तुम्हारे जीवन को बिल्कुल एकदम उसके ऊपर हावी है. Not love that shows up once in a while. ऐसा प्यार नहीं जो इक्का दुक्का बार दिखता है. Not love that shows for certain people. ऐसा प्यार नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है. Not love that sometimes there is love and sometimes there is hate, bitterness and jealousy. ऐसा प्यार नहीं कि कई बार प्यार है, कई बार उसी व्यक्ति से कड़वाहट और जलन है मन. The fullness of the love of God has to be represented in our lives. प्रभु के प्यार की संपूर्णता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए. So when you have inner strength, जब आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत काम करती है, the next step is that you will have the indwelling Christ. अगला कदम कि वो मसीह आपके अंदर वास करेगा. And then you will have this incomprehensible love. और तब आपके पास ये प्यार होगा जो समझ से परे है. And in verse 19 it says that you may be filled to the measure of all the fullness of God. 19वीं आयत में फिर वो कहता है कि तुम बस परमेश्वर की भरपूरी से भर जाओ. Infinite fullness. उसकी अनगिनत जो भरपूरी है. For me, I find this staggering that I will be filled with all the fullness of God. मैं इस बात को बिल्कुल अद्भुत पाता हूँ कि मैं प्रभु की भरपूरी से भर जाऊंगा. So you've understood this. If the Wow. Holy Spirit is in you and you have inner strength, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वो अंदरूनी सामर्थ्य को पैदा करता है, then Christ can freely dwell in you.
तब मसीह आपके अंदर पूरी आजादी से रह सकता है। You will start knowing what is this great love of Christ, आप जानने लगो कि मसीह का अद्भुत प्यार क्या है, and then you will be filled with the fullness of God. और तब तुम परमेश्वर की भरपूरी से भर जाओगे। What will your life look like then? आपका जीवन तब कैसे लगेगा? Godliness, isn't it? उसमें भक्ति होगी। Your talking will be filled with the Spirit. आपके शब्द आत्मा से भरे हुए होंगे। You will be filled with the Lord Jesus Christ, आप प्रभु यीशु मसीह से भरे हुए होंगे, and you will be filled with the fullness of God. और आप परमेश्वर की भरपूरी से भरे हुए होंगे। This should characterize your life and my life. ये मेरा और आपका जीवन ऐसे ही होना चाहिए। The fruit of the Spirit should come out. पवित्र आत्मा के फल निकलने चाहिए। When someone bites me so as to speak, अगर, can you repeat that, brother? what do you do with a fruit? You bite it. आप फल के साथ क्या करते हो? क्या आप उसको मुंह से चबाते हो? So as a figure of speech, if someone bites you, और अगर इसी को इस तरह लेके अगर कोई आपको इस तरह आपको चबाए, will they experience the fruit of the Spirit? क्या वो आपके अंदर उस आत्मा के फल को पाएंगे, उसके स्वाद को पाएंगे? Will they see love and joy and peace and kindness? क्या वो आपके अंदर उस प्रेम को, खुशी को, शांति को, करुणा को पाएंगे? Or will they taste bitterness and anger and jealousy? या जब वो आपको चखेंगे तो आपके अंदर कड़वाहट को और जलन को पाएंगे? The fullness of God. पवित्र आत्मा की भरपूरी। I am not talking of the incommunicable attributes like the omniscience, omnipotence, and the omnipresence of God. मैं यहाँ बात नहीं कर रहा कि वो प्रभु जो सब कुछ जानता है और जो सब जगह पे एक ही बार में मौजूद है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। But I'm talking of the communicable attributes of God. मैं तो बात कर रहा हूँ उन प्रभु के चरित्र की बातों की जो हमारी समझ में आता है। You will not be God, आप परमेश्वर नहीं बन जाओगे, but you will start manifesting the character of God. लेकिन उसका परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर से दिखने लगेगा। Someone can actually see your life and actually see what God is like. कोई जब आपके जीवन को देखेगा तो वो जान जाएगा आपको देख के कि परमेश्वर कैसा दिखता है। They will look at your life and see what Christ is like. वो आपके जीवन को देख के जान जाएंगे कि मसीह कैसा दिखता है। They will look at your life and see what the Spirit is like. वो आपके जीवन को देख के जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा कैसा दिखता है। So you have inner strength, और आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत होगी, which leads to indwelling Christ. और उसके द्वारा आप उस जो मसीह आपके अंदर वास करता है वो आपके अंदर आएगा, that you may know the incomprehensible love, और ताकि तुम मसीह के उस प्रेम को जानो जो समझ से परे है, that you may know the fullness of God, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर की भरपूरी से वास करे। and then finally Paul comes to verse 20. और फिर पौलुस 20वीं आयत पे आता है, Internal power, and with that I'll close. और अंदरूनी सामर्थ्य से खत्म करेंगे। Now unto him who is able to do immeasurably more than we can ask or think. और अब वो जो हमारे मानने सोचने समझ से बढ़कर करने में सामर्थ्य है, according to his power that is in work in us. और उसकी वो सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है। When we have gone down this pathway that we have seen so far, जब हम इस मार्ग से गए जो हमने इतनी बार देखा है, we then reach a point when the power of God starts working in us. तब हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है। Most of us feel very short of all this, isn't it? हम ज्यादातर लोग इस बात में बहुत कम पाए जाते हैं। But you know, this is God's word, and God is able to do this for us. लेकिन ये तो प्रभु का वचन है और प्रभु ये काम हमारे जीवन में कर सकता है। Let me give you another verse from John 14:12. मैं एक और आयत आपको दिखाता हूँ, यूहन्ना 14:12। Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater works than these, because I am going to the Father. हिंदी में पढ़ दे। John 14:12. यूहन्ना 14:12। Please continue, brother. Yeah. Greater works than Christ. मसीह से ज्यादा बड़े काम। Not greater in kind, but greater in extent. ये नहीं जो जिस तरह का काम वो करता है, बल्कि जितना बड़े कितनी सीमा तक काम करता है उससे भी बढ़कर वो करोगे। Christ told his disciples, I have been with you
मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ था, but now I am in you. पर अब मैं तुम में हूँ। That's our power. ये हमारी सामर्थ। Let me close by just reading a few verses from Isaiah chapter 40 and verse 28. आइए आयसाया 40 अध्याय और 28 आयत से पढ़कर खत्म करेंगे। 28 to 31. I'll read this and I'll close. Do you not और- know? Have you heard? प्लीज कर। The Lord is the everlasting. Sorry. 40-28। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, बिना थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। Yeah, till verse 31. ओके भाई। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। This is spiritual strength, brothers and sisters. प्रिय भाई बहनों, ये है आत्मिक सामर्थ। It's not the ability to speak and preach. ये वो सामर्थ नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हो, It's not the ability to sing or और play कि the आप instrument, बहुत अच्छा गा सकते हो और ऐसा सब कुछ कर सकते हो, but it is having that inner strength. बल्कि एक अंदरूनी ताकत आपके अंदर है। May God help you and help me this morning to have this strength and power. प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे आज सुबह की ये ताकत तुम्हारे अंदर।